آپ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ جو انسانی تسلسل چلا آ رہا ہے یہی بہتر ہے، تو اللہ کو قیامت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ قیامت کیوں کریں گے؟ آئیے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک آدمی چل رہا ہے، ایک فقیر آدمی چل رہا ہے، راستے میں کسی آدمی نے اس کو پکڑا اور روکا اور کہا، آئے فقیر آدمی اچھا یہ بتاؤ، آئے انسان اچھا یہ بتاؤ اگر اللہ ہے تو کہاں ہے؟ آئے فقیر آدمی یہ بتاؤ کہ تم جو یہ کہتے ہو اور یہ نعرہ لگاتے ہو، یہ تقریر کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سزا دیں گے، ابلیس کو سزا دیں گے، اور ابلیس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، لہذا جہنم میں تو آگ ہی کا عذاب ہوں گے۔ جس کو آگ سے بنایا گیا ہو اس کو آگ سے کیا سزا ہوگی؟ یعنی ابلیس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور جہنم میں اس کی سزا جو ہے، اس کا عذاب جو ہے آگ ہی ہے، لہذا آگ کو آگ سے کیا تکلیف ہوگی، آگ کو آگ سے کیا سزا ہوگی؟ میرے پیارے ساتھیوں، پھر یہ کہا انسان کو اللہ نے پیدا اس دنیا میں کیا ہے، یہی تو انسانی تسلسل صحیح ہے، پھر قیامت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے فقیر نے یہ سوالات سنے، ایک ڈھیلا اٹھایا، ایک پتھر اٹھایا، ایک ڈھیلا اٹھایا، مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اس آدمی کے منہ پر مار دیا۔ جیسے مارا وہ آدمی گمانی تھانہ گئے اور جا کر فوراً اس کے اوپر شکایت نالش کر دی، فوراً مقدمہ دائر کر دیا۔ عدالت نے یہ فیصلہ سنایا اس کو بلایا جائے، اس فقیر کو بلایا گیا، اے فقیر تم نے اس کو مارا ہے، ڈھیلا مارا ہے؟ کہا میں نے ڈھیلا مارا ہے۔ کیوں مارا؟ تمہیں تو اس نے نہیں مارا۔ کہا نہیں اس نے ہمیں نہیں مارا، میں نے اس کو مارا نہیں، میں نے تو اس کے سوالات کا جواب دیا۔ اچھا ہاں میں نے سوال کا جواب دیا ہے، کبھی کبھی اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دینا چاہیے، اس نے مجھے سوالات کیا اور میں نے اس کو جوابات دیے ہیں، میں نے اس کو جواب دیے۔ اچھا وہ کیسے؟ اللہ ہے تو کہاں ہے اور کیسے سمجھے کہ اللہ ہے؟ میں نے اس کو جواب ڈھیلا مار کے دیا، میں نے اس کو ڈھیلا مارا ہے۔ یہ تو وقتی طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ڈھیلا مارا ہے، لیکن ابھی دکھاؤ کہ میں نے ڈھیلا کہاں مارا ہے؟ اس کے اندر چوٹ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہے، گویا کہ اس کے اندر یہ چوٹ بتلا رہی جو اس کو ڈھیلا مارا گیا ہے۔ اور اس نے یہ بھی سوال کیا اللہ نے ابلیس کو آگ سے پیدا کیا ہے تو جہنم کی آگ سے ان کو کیا تکلیف ہوگی؟ اچھا یہ بتاؤ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں نے اس کو مٹی کا ڈھیلا ہی مارا ہے تو مٹی کے ڈھیلے سے کیا تکلیف ہوئی ہوگی؟ اچھا بات تو صحیح ہے، تم نے جواب ہی دیا ہے، جس طرح ایک انسان کو مٹی کے ڈھیلا مارنے سے تکلیف ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے، حالانکہ انسان کو تو مٹی سے بنائے گئے، اسی طرح ابلیس کو بھی آگ سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن جہنم میں جو آگ ہوں گی اس سے ان کو سزا ضرور ملے گی، ان سے ان کو تکلیف ہوگی۔ اچھا تیسرا جواب دو۔ انہوں نے کہا تیسرا جواب یہ ہے، انہوں نے سوال کیا مقدمہ دائر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان یہ تسلسل جاری رکھتا وہی کافی تھا، لیکن کیا ضرورت تھی قیامت کرنے کی؟ اس لیے میں نے اس کو ڈھیلا مارا اور جواب دیا، اور انہوں نے شکایت لے کر آپ کے پاس آئے۔ اچھا یہ بتاؤ انہوں نے جب آپ کے پاس شکایت لے کر آئے، دنیا میں کتنے غریب ایسے لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں پورا انصاف نہیں ملتا ہے، جن میں دنیا میں کسی انسان کو پورا بدلہ نہیں ملتا ہے۔ اللہ اسی لیے تو کہتا ہے کہ میں ان انصاف کو پورا کرنے کے لیے قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہوں، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا میں مالک ہوں۔ دنیا میں کسی انسان نے کسی کو تھپڑ مارا ہے، دنیا کے اندر کوئی ایسی سرجری نہیں، کوئی ایسی مشین نہیں جس کو ماپا جا سکے اور اس کو بھی اسی کے بدلے میں اسی طرح تھپڑ مارا جا سکے۔ اس لیے دنیا میں اگر کسی نے کسی کو 100 قتل کیا ہے، کسی نے کسی 100 آدمی کو مارا ہے، عدالت یہی کہے گی اس کو بھی قتل کر دیا جائے، پورا انصاف نہیں مل رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسی انصاف کو پورا کرنے کے لیے، اسی چیز کو پورا کرنے کے لیے میں قیامت کروں گا، اور ہمارے یہاں سب سے اٹل فیصلہ ہوں گے، لوگوں کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آئیے قیامت کے سلسلے میں اگنے نیاسو پدھارے آسما وسوانی دیو ویونان بیودان و ایشور، جو قیامت کے دن کے مالک ہوں گے۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے دنیا میں کسی کو اگر انصاف نہ ملاؤ یا پھر ملاؤ تو اس کے اندر کمیاں رہ گئی ہے،
हैं, तो इसी चीज को पूरा करने के लिए, इसी चीज को तकमील करने के लिए अल्लाह क़यामत करेगा। और ऐ लोगों जो इस दुनिया में रूठ चुके हो, अपने रब से बेसहा, अपने रब से रूठ चुके हो और हिम्मत हार गए हो कि दुनिया में हमें इंसाफ नहीं मिलता है, अच्छे आदमी बनकर क्या फायदा, बिल्कुल नाशुक्री और नाउम्मीदी ना हो। अल्लाह फरमाता है मैं इसी चीज को पूरी करने के लिए तो क़यामत करूंगा। और हाँ, आपने सोचा कि हम तो बड़े हैं, किसी गरीब को मारा, किसी गरीब को पाया और थप्पड़ मार दिया, रास्ते में कोई चल रहे हैं, रास्ते में कोई चल रहे, हम उनकी बैंक लूट लिए, हम उनको कत्ल कर दिए, हमारी इस दुनिया में पकड़ नहीं हुई, हम बच गए। नहीं नहीं, अल्लाह फरमाता है मेरी पकड़ बहुत सख्त है और हम तो लोगों को पकड़ के ही रहेंगे, मेरी पकड़ सख्त है। मुसलमानों, जो ये समझता है कि हमने किसी को मार कर भाग गया या बच गया दुनिया की अदालतों से, हमारे बाप वकील है, हमारे बाप जज है, हम तो बच जाएंगे, दुनिया की नज़र से, दुनिया की आंखों से बच सकते हैं, लेकिन अल्लाह की आंखों से, अल्लाह की नज़र से नहीं बच सकते हैं। अब देख लीजिए सूरत हाल, झारखंड के अंदर तबरेज अंसारी को मार दिया गया, पीट पीट कर मार दिया गया, दुनिया की अदालतों ने फैसला सुना दिया, उसको बरी कर दिया गया। ये समझते हैं खुशी से हम तो बरी हो गए, हम तो पाक हो गए, हम तो कामयाब हो गए, लेकिन क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे। दिल्ली के अंदर कारी ओवैस को मार दिया गया, ये समझते कि हमको तो जमानत मिल गए, हमको तो रिहा मिल गए, लेकिन क़यामत में ज़रूर उसके पकड़ होंगे। इसलिए कोई ये सोचता है कि हम किसी इंसान को मारेंगे, तो एक बात याद रखना मुसलमानों, हदीस ये कहती है कि सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा कौम माहुम सियाल, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कुर्सी पर बिठाए जाएंगे, सत्ता पर बिठाए जाएंगे, और सत्ता पर बैठकर उनके पास प्रशासन की ताकत होंगे, उनके पास लाठी होंगे, उनके पास सारी चीजें होंगे, हथियार होंगे। अगर उन्होंने लोगों के साथ अच्छा फैसला किया है तो ईश्वर कहता है कि मैं उसको अर्श की साए के नीचे जगह दूंगा। लेकिन उन्होंने अगर अपने लाठी का गलत इस्तेमाल किया है, उन्होंने अगर अपने लाठी का गलत यूज किया है, अल्लाह फरमाता है जहन्नम के दो गिरोह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम के दो गिरोह होंगे, उन्हीं दो गिरोह में से एक गिरोह में उनका भी नाम शुमार होगा। आए लोगों, अगर कोई, हम ये नहीं कहते कि कौन सा धर्म सही है, उन्हीं के धर्म के मुताबिक बयान कर रहे हैं। अगर कोई हिंदू हो, कोई अगर उसके जात बिरादरी में हो, दुनिया में किसी इंसान से रिश्वत खाता है, दुनिया में किसी के ऊपर गलत और नाजायज थप्पड़ मारता है, बेकसूर को मारता है, जय श्री राम के नारे लगाकर मारते हैं, अपने पास अथॉरिटी, अपने पास ताकत होने के बल, तो ईश्वर कहता है कि उसको कुत्ते का जन्म मिलेगा। और हमारी यह हदीस ये कहती है कि अगर उसके पास ताकत रहने के बावजूद गलत इस्तेमाल किया तो जहन्नम के गिरोह में शामिल होंगे। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि जहन्नम के इन गिरोह में शामिल नहीं होंगे और इस चीज से बचकर जन्नत की तरफ माइल होंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि जहां आपको सही हक कर, जहां आपको आपके ही पक्ष में फैसला करना वहां कीजिए, जहां आपको लग रहा है कि हमें दूसरे के पक्ष में करना चाहिए वहां कीजिए। ये नहीं देखिए इंसाफ के मामले में कि कौन मेरा भाई है, कौन मेरे वालिद है, आप इंसाफ सही तरीके से कीजिए। इसी चीज का नाम तो इस्लाम, इसी चीज का नाम तो अमन व अमान। इस्लाम तो हमेशा ये सिखाता है कि आप हमेशा लोगों को भाईचारा का पैगाम दीजिए, हमेशा लोगों को अखलाक से जुड़िए, हमेशा लोगों के दरमियान रिश्ता कायम रखिए। इस्लाम तो ये कहता है, और इस्लाम ये कहता है अगर आपके सामने आपके इलाके में मुसलमानों की तादाद ज्यादा है और हिंदू भाई की तादाद कम है, इसका मतलब ये नहीं आप उसके खिलाफ फैसला करें। और हाँ, अगर कहीं हिंदू भाई ज्यादा है तो उनको भी, उनकी किताब ये नहीं कहती है कि मुसलमान के ऊपर गलत फैसला किया जाए। वो राम जिनके नारे लगाकर, जय श्री राम के नारे लगाकर लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वो राम ये कहते हैं जिसने किसी इंसान को नाजायज थप्पड़ मारा है, ईश्वर उसको कभी नहीं बख्शेगा, ईश्वर उसको कभी नहीं बख्शेगा। उसके दरमियान इंसानियत निकल जाती है, इंसानियत का जनाजा निकल जाता है। उसी तरह तो कुरान कहता है जिसने किसी एक इंसान की जान बचाए उसने पूरे इंसान की जान बचाए। गोया के कोई ऐसा धर्म नहीं जो हमें और आपको लड़ा रहा है, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं, चाहे किसी भी कौम से हो, हमें और आपको लड़ाता है। और अफसोस इस बात की है कि हम बड़े बड़े
पोस्ट पर कायम है, सत्ते पर आ गए हैं, लेकिन हमें सही इल्म नहीं है, सही नॉलेज नहीं है, सही जानकारी नहीं है। आओ मैं आपको जो कर्नाटक के मामले में हिजाब का मुद्दा उठाया जा रहा है, और इलेक्शन के मौके पर ये हिजाब का मुद्दा उठाया जाता है, इलेक्शन के मौके पर ये आवाज उठनी चाहिए, इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। जो बेरोजगार है उसको रोजी कैसे मिले, जो बेचारा गरीब है उसके घर में खाना कैसे पहुंचे, जो किसान है उनके खेत में अनाज, उनके खेत में खाद्य पदार्थ कैसे पहुंचे, इस मुद्दे पर आवाज उठनी चाहिए। लेकिन जैसे इलेक्शन का मौका आता है, इलेक्शन का वक्त आता है, यही धर्म के मामले में लोगों को लड़ाया जाता है, मुसलमान हिंदू कराया जाता है, मस्जिद मंदिर कराए जाते हैं। और ये फैसला आपके सामने 15 मार्च को रिजल्ट आ चुका है, हाई कोर्ट कर्नाटक ने आपके सामने फैसला रख दिया है कि इस्लाम में हिजाब कोई अनिवार्य नहीं है, कोई अनिवार्य नहीं है। मुझे अफसोस इस पर नहीं कि उन्होंने कुरान की तालीमात को नहीं जाना, मुझे अफसोस इस बात पर है कि उन्होंने संविधान को भी ठुकराया। संविधान हमेशा चीख चीख कर ये कहता है धर्म के मुताबिक सबको इबादत करने की इजाजत है, पूरा अधिकार है। एक हिंदू को पूरी आजादी है, वो मंदिर में जाकर ईश्वर का नाम ले सकता है। ये कि सिख को गुरु नानक की इबादत करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उन्होंने ये कहा हिजाब के मामले में कि ये हिजाब इस्लाम का अनिवार्य जुज नहीं है, अनिवार्य हिस्सा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जब ऐसे ऐसे लोग सत्ते पर आ जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग कुर्सियों पर आ जाएंगे, तो हमारी इन चीज़ों का जनाजा ही निकल जाएगा। लिहाजा मुसलमानों, सबसे पहले अपने अंदर इनकलाब पैदा कीजिए, अपने अंदर इस्लाह पैदा कीजिए, खुद को बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुरान हमें तो यही पैगाम देता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअंफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालात नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको अपने आप की हालात बदलने की। इसका मतलब यह है हमें उकसाना, जो हमें उकसा रहे, जो हमें वर्गला रहे हैं, हमें भड़कना नहीं है, हमें जंगल में आग की तरह भड़कना नहीं है, बल्कि हमें दूरअंदेशी से काम लेने की जरूरत है, बल्कि हमें सोच विचार करना चाहिए और बिल्कुल मैदान में कूद जाना नहीं चाहिए। सोच समझ कर काम लेना चाहिए कि आखिर हमारे ऊपर इतनी इतनी चीजें आ रही है, कभी दाढ़ी पर पाबंदी लगाए, कभी टोपी पर पाबंदी, कभी हिजाब पर पाबंदी। इसका मतलब हम अपने गरीबान में झांक कर देखें कि हमारे अंदर कौन सी गलतियां हैं। हाँ, हम अपनी गलतियों का खुद पहले ही इस्लाह करेंगे, उसके बाद दूसरों की इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब आप सड़कों में चलिएगा, अगर आपने लाइन को तोड़ा, अगर आपने गलत रूट पे चला, तो जाहिर सी बात है दूसरी आकर आपको टकराएंगे, दूसरे की गाड़ी आकर आपकी गाड़ी से टकराएंगे, आप खतरे में आ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको ये जरूरी और आपकी ये ड्यूटी है कि आप अपने लाइन के हिसाब से चलिए। उसके बाद कोई अगर आपके ऊपर कुछ करता है तो उसके लिए रास्ता निकाला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप ये ना सोचें कि आज हिजाब का मुद्दा है, ये तो एक शुरुआती एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। अपने अंदर ईमान पैदा कीजिए, अपने अंदर ईमान को ताज़ा कीजिए। कुरान तो यही कहता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ मुसलमानों, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही बादशाह बनाए जाओगे, तुम ही दिल का बादशाह बनाए जाओगे, तुम ही मुल्क का बादशाह बनाए जाओगे। शर्त अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। आज हमसे ये कहा गया हिजाब इस्लाम का अनिवार्य नहीं है, तो सबसे पहले हमारा और आपका अकीदा इस बात पर होना चाहिए, हमारा और आपका ये सबसे पहला काम होना चाहिए कि हम कुरान की तालीमात पर नजर डालेंगे, हम हदीस की तालीमात पर नजर डालेंगे कि हाँ, हकीकत में हमारे हदीस में इस तरह की तालीम, इस तरह का इल्म मिलता है या नहीं। कुरान पढ़ेंगे सूरह नूर, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आए लोगों, आए मोमिन मर्दों, जब भी रास्ते में चलो तो अपनी निगाहें झुकी, अपनी निगाहें झुका कर चलो, अपनी निगाहें नीचे रख कर चला करो। और हमारी माँ बहनों को भी यही नसीहत की है। कुरान ने ये कहा है कि जब भी वो रास्ते में चले, खुद पहले एहतियात बरते, खुद अपनी निगाह को नीचे रख कर जाए। जब हम अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे पीछे कोई नहीं लग सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें और आपको ये जरूरी बनता है कि हम अपने गरीबान में झांक कर देखें, हम अपनी
बुराइयों के ऊपर झांके और जो हमारे अंदर गलतियां हैं उसको हम खत्म करें, उसके बाद दूसरों के पीछे लगे। हम तो जानते हैं कितने ऐसे सरकार आएंगे, आती जाती सरकारों से क्या लेना, ये तो आएंगे, आ जाएंगे, कल चले जाएंगे, लेकिन हमारा इस्लाम बाकी रहेगा, कुरान की तालीमात बाकी रहेंगे, इस्लाम बाकी रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, लाखों ऐसे लोग आए जो इस्लाम को मिटाने की बात की, इस्लाम को मिटाने की कोशिशें की, लेकिन इस्लाम बाकी रहा और घर घर में पहुंचा। इंशाअल्लाह कयामत की सुबह तक इस्लाम घर घर पहुंचते रहेंगे, लेकिन शर्त है कि हम अपने अंदर ईमान पैदा करें। जब हम तो अपने अंदर ईमान नहीं पैदा करेंगे तो मेरे भाइयों एक हदीस सुन लीजिए, ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, इस्लाम में सिर्फ नाम का बाकी रह जाएगा, इस्लाम सिर्फ नाम से पहचाना जाएगा। हाँ, ये पहचाना जाएगा इसका नाम खालिक है, ये पहचाना जाएगा इसका नाम जब्बार है, लेकिन अमल से नहीं पहचाना जाएगा। इस कौम की सूरत हाल यही हो रही है, इस कौम की सूरत हाल ही हो गए हैं कि हम तो नाम से पहचाने जाते हैं लेकिन अमल से पहचाने नहीं जाते हैं। आइए, गैर मुस्लिमों को अगर हमसे नफरत और दुश्मनी है, किसी मुसलमान से दुश्मनी नहीं है, किसी मुसलमान से नफरत नहीं है, बल्कि मुसलमान के अच्छे अमाल से नफरत है, मुसलमान के इस्लामी तालीमात पर नफरत है। इसलिए मुसलमानों, सबसे पहले आपको ये जरूरी है कि हम अपने आप को पहले इनकलाब लाए, हम अपने अंदर सुधार लाए। इंशाअल्लाह हालात ऐसे आएंगे, बिल्कुल अमन व अमान कायम होगा, हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम हो जाएंगे और ये लाखों भेड़िए पैदा होंगे और ये भेड़िए चले जाएंगे। आपको याद होंगे वो सारे वाकयात, इस दुनिया में कितने बड़े बड़े जालिम बादशाह आए, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की बात की, लेकिन अल्लाह ताला ने उनका सर्वनाश कर दिया, जमीन में उनको मिला दिए, मिट्टी में धंसा दिए। इसलिए आप ना उम्मीदी और मायूसी ना होइए। कुरान कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ लोगों अल्लाह की रहमत से मायूसी ना हो जाना। आज हमारे पास मुसीबत आई है तो कल खत्म होंगे, और जाहिर सी बात है जो मुसीबत आई वो खत्म होंगे तो मजा उसी वक्त आएगा, लेकिन हमेशा अगर खुशियां ही खुशियां मनाते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। आओ एक मंत्र आपके सामने रख रहा हूँ, फिर आखिरत के सिलसिले में वसुरदयामाना, वो ईश्वर ऐसे होंगे जो बड़े रहम करने वाले और बड़ा कृपालु होंगे। इसलिए आपको ना उम्मीदी और मायूसी होना नहीं है, अल्लाह पर आपको भरोसा करना चाहिए, तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह की जात पर भरोसा करना चाहिए। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, और जिसने अल्लाह पर गुमान रखा, जिसने अल्लाह की जात पर भरोसा रखा, वो अल्लाह वो अल्लाह काफी है, वो अल्लाह अकेला काफी है। हम ये समझे कि इसको उठ करके हम अच्छे हो सकते हैं, नहीं। अगर हालात ऐसे आ जाएंगे कि हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहा दम था, इस घर में आग लग गई, इस घर के ही चिराग से उम्र भर जिनको अपना मसीहा समझते रहे वो भी हमको पराया समझते रहे, उम्र भर जिनको अपना मसीहा समझते रहे वो भी हमको अपना मसीहा समझते रहे, लेकिन किस्मत का क्या कहना कि उस घर को आग लग गई, इस घर को इसी घर के चिराग से। हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये चिराग जो हमारे घर में जल रहा है ये घर में रोशनी पहुंचा रहा है, लेकिन नहीं, ये चिराग ही हमारे घर को आग लगा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए सबसे बेहतर और फर्स्ट काम आपका ये कि हम अल्लाह पर भरोसा रखें, और वो अल्लाह ही है जो हमारे हालात में चेंजिंग ला सकते हैं, वो अल्लाह ही है जो इन कौमों के दरमियान इन कौमों के दरमियान तब्दीली ला सकते हैं। क्योंकि अल्लाह तो ये कहता है जब कौम सर्कस में आ जाएंगे, जब कौम बुराई के दलदल में फंस जाएंगे, जब कौम 500 रुपये ले लेकर अपने जमीर का सौदा कर देंगे, अपने ईमान को बेच देंगे, अल्लाह उस जगह पे दूसरे कौम को मुसल्लत करेंगे। इसलिए सबसे पहले आपकी ये जिम्मेदारी है, आपका ये काम है कि आप अल्लाह पर भरोसा करते रहिए। मेरे प्यारे साथियों, इस मंत्र में कहा गया वसुर दया माना, वो ईश्वर पर रहम करने वाले हैं, सबको माफ करने वाले हैं। हाँ, ये जो हमारे सामने हालात गुजर रहे हैं, कभी हमारे ऊपर इस चीज पर पाबंदी, कभी इस चीज पर पाबंदी, तो हमें अल्लाह ही पर दुआ और भरोसा रखना चाहिए और ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह इस भारत में अमन व अमान कायम कर दे, हिंदू मुसलमान के दरमियान भाईचारा कायम कर दे, और ये दिन देखना ना पड़े कि तबरेज अंसारी को मार दिया गया, उनकी भी बीबी थी, उनके भी माँ थे, उनके भी बाप थे, उनकी आंखों में उनके दिल में क्या बीत रही होगी। कारी ओवैस को
अखलाक को इन तमाम लोगों को मॉब लिंचिंग के जरिए हत्या कर दिए गए, यह दिन देखना न पड़े। या अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान और सास घर पैदा कर दे। या अल्लाह इस दुनिया में जो लोग हैवानियत के शिकार हो चुके हैं, या अल्लाह उनके दिल में इंसानियत डाल दे। या अल्लाह दुआ करनी चाहिए, हो सकता है अल्लाह गफूर रहीम है, हमारी दुआ को बख्श भी सकता है और हमें माफ भी कर सकता है, लेकिन शर्त है हम अपने अंदर इनखिलाफ पैदा करें, शर्त है कि हम अपने आप को पहले सुधारें। मुसलमानों, सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने आप को देखें, उसके बाद और दूसरी के पीछे लगे। ये कौम की हालात आज इसलिए ऐसे हुए हैं कि ये कौम इंतशार है, ये कौम बटी हुई कौम नजर आ रही है। एक हिंदू भी आज ये कह रहे हैं कि दुनिया में हमने घूमा, पूरी दुनिया घूमी, पूरी दुनिया का मुजाहिरा और मुशाहिदा अपनी आंखों से किया, लेकिन सबसे ज्यादा बटी हुई कौम कोई अगर नजर आई तो मुसलमान है। किसी कौम के दरमियान अगर सबसे ज्यादा इंतशार पाया गया, किसी कौम के दरमियान सबसे ज्यादा नाइत्तिफाकी पाए गए, वो मुसलमान कौम है जो एक प्लेटफॉर्म पर कायम नहीं है। हमारा भाई इलेक्शन में उठता है, कोई इसी पार्टी से, दूसरा भाई उसके मुखालिफ खड़ा हो जाता है। इन कौमों को अपनों से जलन है, इन कौमों को अपने से जलन है। ये कौम ये नहीं चाहती कि हमारा भाई आगे बढ़े। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए आपको इंतशार पर नहीं बटना है। ये है ईमान, ये है ईमान। और ताज़ा ईमान को ताज़ा करने का जरिया हम चाहे किसी को ही, हम चाहे किसी गरीब, हम चाहे किसी यतीम, हम चाहे किसी लाचार को ही वोट करें, लेकिन शर्त है कि हम अपने अंदर इत्तेफाक पैदा करें, तब हमारे अंदर ईमान में इजाफा होगा, ईमान ताज़ा होगा। आए मुसलमानों, और अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह हमें माफ कर दे। मुसलमानों, आओ मैं फिक्र आखिरत से जुड़ने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म पर कायम कर रहा हूँ। एक प्लेटफॉर्म पर आने से हमारे और आपके हालात ऐसे होंगे, जब हमारे इस देश में अंग्रेजों ने कब्जा जमाया, हम ही थे, आप ही थे, जिन्होंने सब आपस में एकता होकर, जिन्होंने आपस में एक होकर अंग्रेजों को इस मुल्क से भगाने में कामयाबी हासिल किए। हम ही थे जिन्होंने इस देश में एकता होने के लिए अपना खून बहाए। मेरे प्यारे साथियों, आज उसी तरह सख्त जरूरत है भारत को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए कि हम एक प्लेटफॉर्म पर कायम है और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, दुआ करनी चाहिए। आए अल्लाह, हमारे भारत में जो ये दहशतगर्दी, भारत में खून खराबा, आपस में एक दूसरा इंतशार पर बटे हुए हैं, ये अल्लाह सबको एक प्लेटफॉर्म पर कायम